आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? हाँ, it's okay. And I have completed my PhD from Abdul Salam School of Mathematical Sciences, GC University Lahore. And now currently I am serving as associate professor in Department of Mathematics, COMSAT Lahore campus. I'm also thankful to the organizer of this workshop. I'm first time here to this workshop, and today I talk about the application of graph theory in chemistry. Okay, so actually graph theory have many applications in some other sciences also, like computer science and many other sciences. But today our main focus is the application of graph theory in chemistry. And the title of my topic is today Basic Concept of Topological Indices for Molecular Graphs. Actually, Dr. Kamran Jamil requested me that, Dr. Saab, you have to give some basic ideas to the students initially that they are doing MS mathematics and PhD mathematics. So I will try to discuss the basic concept or the basic ideas where you can understand, then you can work in this field. So these are some outlines of my today talk. So one by one we will discuss each outlines. Okay, so first we talk about some basic graphs, and then when you understand the concept of graphs, then we will switch these concepts in the mathematical chemistry. Okay, so a graph is a combination of two objects. The one is the vertex set and second is the edge set. And the vertex set is denoted by V and the edge set is denoted by E. And the total number of vertices in the graph is called order of the graph, and the total number of edges in the graph is called size of the graph. And today we talk about the graph of finite orders. Because the things are finite, then we will handle the things manually, also using the program and also manually. Because some other fields we have infinite sets and many function sequences, and to control these things is not easy. But if the things are in control, you can say the things are infinite, then you can manage the things. So we will focus on the finite graphs. And second thing is we are talk about simple graphs. There are multi-graphs in which there are more than one edges between two vertices, but our focus is on simple graphs. Simple graphs that in which we have no parallel edges and there is no loop. Here is an example of the simple graph in which the number of vertices are 8 and the number of edges are 9. Okay, there are some basic graphs. We talk about path graph. A path is actually the sequence of vertices. Okay, तो ये कुछ रिक्वेस्ट आई है कि उर्दू में बात कर लें तो अच्छी बात है। चलिए आपको चले अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। एक्चुअली रूटीन में जब हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो इस तरह का एटमॉस्फेयर में चल रहा होता है, लेकिन चले कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट आई है तो हम इस तरह की चीजों को मूव कर सकते हैं। सो बेसिकली जहाँ से ग्राफ थ्योरी का स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है ग्राफ में वो पाथ ग्राफ की आती है कि आपके पास वर्टिसेस हैं, कहीं कोई आप एक सीक्वेंस जनरेट करने हैं। सो ये आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है पाथ ग्राफ की P2, P3 एंड P4। एंड द सेकंड एग्जांपल इज अबाउट साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ ये कि जो फर्स्ट वर्टिसेस को अगर हम एंड वर्टिसेस ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक साइकिल ग्राफ जनरेट हो जाता है। ये जो भी हम ग्राफ्स की बात करें, ये हम XY प्लेन के अंदर बात करें ग्राफ की। ये ग्राफ कहीं ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो अभी जो डिस्कशन हो रही है इनिशियली, ये हम XY प्लेन के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे ग्राफ्स जो नेक्स्ट एक्चुअली जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेटर ऑन इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को हमने लेके जाना मैथमेटिकल केमिस्ट्री के अंदर, एंड देन वी विल स्विच ऑन रिसर्च वर्क। तो बेसिकली आप अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक ग्राफ के समझ आएंगे, देन ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं केमिकल ग्राफ्स की कॉन्सेप्ट इसी पैटर्न पे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम न्यू रिसर्च आइडियाज इन दिस फील्ड। ओके, तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है। एक वर्टिसेस के जितने भी नेबरहुड होते हैं, अगर हम उनको काउंट कर लें तो वो उस वर्टेक्स की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड पे अगर आप देखें तो जो डी वर्टेक्स है उसके नेबरहुड देखें, उसके नेबरहुड में हमारे पास A, C और E तीन वर्टिसेस नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इस वर्टेक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो A वर्टेक्स है उसके नेबरहुड में वर्टिसेस देखें, 2 वर्टिसेस नजर आ रहे हैं उसके नेबरहुड में, B एंड D। इस वर्टेक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड देन सो ऑन। तो इसी तरह से कोई भी आपके पास फाइनाइट ग्राफ होगा तो हमारे जो टोटल टॉक है वो किस पे बेस कर रही है बच्चों, फाइनाइट ग्राफ पे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी फाइनाइट बैठे हुए हैं इस रूम में, अगर इन्फिनिट स्टूडेंट होते तो वहां तक आवाज ही नहीं जाएगी, ठीक है। सो हमने फाइनाइट ग्राफ के ऊपर चीजों को फोकस करना है। सो ये कुछ और वर्टिसेस है जिनकी डिग्रीज यहाँ पे शो हो रही है। सो डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये जो आगे रिसर्च वर्क की जो बात कर रहा हूँ, आगे कुछ मैं ओपन प्रॉब्लम रखूंगा एंड पे, उन सब में जो बेस करेगी वो आपके जो एक तो फाइनाइट ग्राफ होगा, उसकी समझ आ गई सब बच्चों को फाइनाइट ग्राफ क्या होगा।
नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस उसके अंदर क्या होना चाहिए, फाइनाइट। फाइनाइट चीज होगी तभी हम उसको कुछ उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि डिग्री हमने हर वर्टेक्स की कैसे कैलकुलेट करनी है। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको समझाया है, एक वर्टेक्स के जितने नेबरहुड हमारे पास होंगे वो उस वर्टेक्स की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ओके गुड। तो तीसरी बात हमारे पास आ रही है कनेक्टेड ग्राफ। हमने जो वर्किंग करनी है, जो अभी हम वर्किंग कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी के अंदर, वो हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होने चाहिए, ठीक है। कनेक्टेड ग्राफ से क्या मुराद है, हर वर्टेक्स से आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स से मूव कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये जो आपके सामने दो एग्जांपल्स आपको नजर आ रही है, हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे हमारे पास डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी आएंगे। तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ में ऐसे ग्राफ जिसके किसी एक वर्टेक्स पे हम किसी पाथ के थ्रू मूव ना कर सकते हो। ये देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे पहला ग्राफ, इसमें जो वर्टेक्स 3 है, इस वर्टेक्स पे हम देखें मूव नहीं कर सकते। इस ग्राफ के अंदर 4 वर्टेक्स से 6 वर्टेक्स पे मूव कर सकते हैं। देखें 4 से 1 पे मूव करें, 1 से 6 पे मूव करें, तो ये मूवमेंट हो सकती है। लेकिन 3 वर्टेक्स जो है इस पे हम कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ कौन सा हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। या इसकी एक और डेफिनेशन भी है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, इसमें आपको एटलीस्ट 1 वर्टेक्स ऐसा मिलेगा जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिग्री की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी। डिग्री क्या होती है कि एक वर्टेक्स के साथ जितने उसके नेबर्स होते हैं ना, तो इस 3 के साथ यहाँ पे आपको कोई नेबर नजर आ रहा है इसमें, नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। तो ऐसा ग्राफ जिसमें कोई एक ऐसा वर्टेक्स आपको मिल जाए जिसकी डिग्री 0 हो जाएगी, तो वो हमारे पास कौन सा ग्राफ हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो क्या है, सिंपल, कनेक्टेड और डिग्री की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। 3 बातें आपको समझ आ गई, आई होप, ठीक है। तो यहाँ पे एमएस के स्टूडेंट कितने बैठे हुए हैं, एमएस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, ये काफी सारे हैं, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं, इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जैसे हमने डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज किया, इस तरह से एक्चुअली जो ग्राफ थ्योरी में वर्किंग है वो इन जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ग्राफ की, किसी में भी आप मूव कर सकते हैं। डिग्री बेस पे भी मूव कर सकते हैं, डिस्टेंस बेस पे भी मूव कर सकते हैं और एसेंट्रिसिटी बेस पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, दो वर्टिसेस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमारे पास क्या होता है, उस वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें आप N2 वर्टेक्स और N7 वर्टेक्स के दरमियान, N2 से आपने N7 पे मूव करना है शॉर्टेस्ट वे में, तो कितने एजेस यूज हो रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो 4 एजेस यूज से N7 पे मूव कर रहे हैं, तो कितने एजेस यूज हो रहे हैं, 4। तो इसका मतलब है N2 से N7 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 4। आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना, और भी बेस से मूव किया जा सकता है। आपने N2 से वॉक शुरू करनी है और आपने कहां पे पहुंचना है, N7 पे। तो एक से ज्यादा वे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने एक वे यूज करना है, 5 एजेस भी आ सकते हैं, 6 एजेस भी आ सकते हैं, लेकिन हमने कौन सा पाथ चूज करना है, शॉर्टेस्ट पाथ। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ अगर आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मूव करते हैं, तो वो उसके दरमियान क्या कैलकुलेट हो जाता है, डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। ये डिस्टेंस की बात समझ आ गई। अगली अगली जो 5-10 स्लाइडें आएंगी वो सारी डिस्टेंस बेस्ड चलेंगी। एट द एंड हम डिग्री बेस पे बात करेंगे, ठीक है। तो और एसेंट्रिसिटी क्या होती है, आप हर वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालें, उसका एक सेट बना लें, उस सेट में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी हो जाएगी। तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालना है, आपने मूव करना है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के दरमियान, नंबर ऑफ एजेस कम से कम यूज करने हैं, तो वो उस वर्टेक्स, दो वर्टेक्स के दरमियान क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ओके ओके, सो अभी हम बात करेंगे टोपोलॉजिकल इंडेक्स की। तो एक्चुअली जो मेरा रिसर्च एरिया है वो टोपोलॉजिकल इंडिसेस के बेस पे ही है, ठीक है। तो उसमें जो पहली डेफिनेशन आती है मॉलिक्यूलर ग्राफ क्या होता है। तो अभी हमने जो 5-6 डेफिनेशंस पढ़ी है, ये हमने सिंपल ग्राफ जो प्लेन में हमारे पास ग्राफ ड्रा होता है उनकी बात हम कर रहे थे। तो अभी हम मूव कर रहे हैं केमिकल ग्राफ के ऊपर। तो केमिकल ग्राफ में क्या होता है, आपके पास एक कोई भी मॉलिक्यूल गिवन होगा, उस मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग हमने एक ग्राफ जनरेट करना है। उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्राफ। अभी थोड़ी देर के बाद वो आपको एग्जांपल्स ग्राफ नजर आएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी नजर आएंगे और उनके ग्राफ भी नजर आएंगे। तो मॉलिक्यूलर ग्राफ में एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं उनको वर्टिसेस से रिप्लेस कर देते हैं और जो उनके दरमियान बॉन्ड्स होते हैं उनको हम एजेस से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर वही बात करूंगा कि हमने जो ग्राफ लेने हैं, सिंपल ग्राफ लेने हैं। तो सिंपल ग्राफ डेफिनेशन मैंने क्या बताई है कि पैरेलल एजेस नहीं होंगे। तो आपने देखा होगा, आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ना, एफएससी में हम सब ने पढ़ी हुई है, उतनी मुझे आती है जितनी आपको आती है। मैंने भी एफएससी पढ़ी थी, उसके बाद में पढ़ी। तो जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो सिंगल बॉन्ड भी होता है एटम्स के दरमियान, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। हम किस पे वर्किंग करेंगे आज, सिंगल बॉन्ड पे। जिंदगी आसान करनी है, समझना है ना बेसिक कॉन्सेप्ट। आप डबल, जब आप सब सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप डबल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे, अल्कीन्स अल्काइंस पे मूव कर सकते हैं।
तो ये इसलिए टॉपिक चूज किया गया ताकि आपको बेसिक आइडियाज समझ आ जाए। ठीक है, सिंपल ग्राफ होता है उसको हैंडल करना आसान होता है, नो डाउट। अगर आप इन चीजों को हैंडल करेंगे तो आप मल्टी ग्राफ पे भी मूव कर सकते हैं वर्किंग में। ठीक है, और ग्राफ इनवेरिएंट की डेफिनेशन क्या है कि हर ग्राफ में हम कुछ चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्योंकि हम फाइनाइट ग्राफ की बात कर रहे हैं तो फाइनाइट ग्राफ में बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, हर वर्टिस की डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, दो वर्टिस के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, दो वर्टिस के दरमियान उसकी एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफ इनवेरिएंट में कौन सी चीजें आ रही हैं, जो भी एक फाइनाइट ग्राफ से हम चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर फाइनाइट ग्राफ है तो हम कौन सी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑर्डर, साइज, वर्टिसेस की डिग्री, अभी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी वो सारी हम एक ग्राफ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अगर आप पास कोई कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं वो आप क्वेश्चन जरा नोट कर लें, रादर देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट डिस्कशन टुडे डिस्कशन। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। तो ओके, नेक्स्ट हमारे पास टोपोलॉजिकल इंडिसेस। तो जब हमारे पास एक केमिकल ग्राफ आ जाएगा और उसके हम इनवेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे, इनवेरिएंस से मुराद हम उसके वर्टिसेस, ऑर्डर, साइज, डिग्री, एसेंट्रिसिटी, डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर हमने कुछ फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। उन फार्मूलाज की बेस पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। तो दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड टोपोलॉजिकल इंडेक्स ऑफ दिस ग्राफ। तो ये भी डिटेल में आगे चीजें आ जाएगी। सो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखी हुई है। मैंने कहा था हम शुरू में हम बेसिक ग्राफ जो प्लेन में ड्रा होते हैं उनकी बात करेंगे, और नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे केमिकल ग्राफ के ऊपर। तो केमिकल ग्राफ में आपको एक कार्बन का एटम नजर आ रहा है, एक हाइड्रोजन का एटम नजर आ रहा है। ये कहीं देखे होंगे आपने, कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, मैटर का में कहीं ना कहीं देखे होंगे। ओके, सो ये जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ी मोटिवेशन के लिए कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, ग्राफ थ्योरी को हम लेके जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ओके। जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान किस तरह बॉन्डिंग होती है, ये मैंने थोड़ा सा रखा है ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए आपको कि एक्चुअली ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। हम इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, ये केमिस्ट्री वालों ने ऑलरेडी किया हुआ काम। हम इस पे जो काम करेंगे वो थोड़ी देर के बाद आएगा। तो यहाँ पे जैसे मोटिवेशन ही बता रहे हैं कि किस तरह बॉन्ड आपस में कनेक्ट होते हैं। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको शो किया कि जो कार्बन है उसका जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, सेकंड शेल के अंदर आपको 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। और केमिस्ट्री में ये मेथड होता है कि अगर आपने एक एटम के शेल्स को कंप्लीट करना है, उसके जो फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सेकंड शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पढ़ा हुआ, कहीं सुना हुआ ये? ओके, गुड। चलें, रिकॉल इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह केमिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो अगर कार्बन के हमने सेकंड शेल को कंप्लीट करना है जिसके अंदर हमें 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब 4 और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका सेकंड शेल कंप्लीट होगा, तभी इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो क्या करेंगे, इसके जो आखिरी 4 इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ ना, ये हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो इसका जो आउटर शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा कार्बन का। तो ये इस तरह से देखें स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। ये फर्स्ट फिगर में देखें, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जब इन चारों के साथ एक एक हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं हमें? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नजर आ रहा होगा, सेंटर में आपको कार्बन नजर आ रहा है और इसके 4 साइड पे हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। ये जो तीनों चीजें लिखी हुई हमने केमिस्ट्री से ली है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये उन्होंने फॉर्मेशन बताई हुई कि एटम्स किस तरह मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। हमारा रोल इससे अगले ग्राफ में, इससे अगली जो फिगर नजर आ रही है वहां पे रोल है। अभी हमने केमिकल मॉलिक्यूलर ग्राफ का फॉर्मूला पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें क्या होता है कि हमने जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं, उसको हमने किससे रिप्लेस करना होता है। तो देखें, जो कार्बन का एटम है इसको मैंने देखे वर्टेक्स से रिप्लेस कर दिया, और हाइड्रोजन के एटम्स को भी हमने किससे रिप्लेस कर दिया, वर्टिस से रिप्लेस कर दिया। इनके दरमियान ये बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड, तो इनको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ग्राफ बन गया। तो जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल के फार्मूले आप पिक कर सकते हैं केमिस्ट्री के जर्नल से, बुक से, उनके करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ जनरेट कर सकते हैं, फाइनाइट ग्राफ। एक और एग्जांपल अभी आएगी आपके सामने, ये पेंटीन का ग्राफ बना हुआ C5H10। ये पढ़ा था कहीं पेंटीन आपने कहीं पे, C5H10। देखिए, कार्बन के 5 एटम है, हाइड्रोजन के 10 एटम है। अगर हम इस ये लेफ्ट साइड पे आपको इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, राइट साइड पे देखें हमने वही डेफिनेशन इसको अप्लाई की है। जो इसके एटम्स हैं उनको हमने वर्टिसेस रिप्लेस कर दिया, और जो इसके एजेस बॉन्ड थे उनको हमने एजेस रिप्लेस कर दिया। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हमें मॉलिक्यूलर ग्राफ मिल गया है। ओके, इस ग्राफ के अंदर राइट साइड जो ग्राफ नजर आ रहा है, इस पे आपको कितनी कितनी डिग्री के वर्टिसेस नजर आ रहे हैं। जैसे 1 डिग्री का वर्टेक्स नजर आ रहा होगा आपको, और 4 डिग्री के वर्टेक्स नजर आ रहे हैं। तो हमारा काम क्या है कि हमने जो भी मॉलिक्यूल गिवन होता है उसका हमने करस्पॉन्डिंग ग्राफ जनरेट करना होता है, एंड देन ग्राफ जनरेट होगा, फिर हमने क्या करना है, उसके इनवेरिएंट्स कैलकुलेट करना है। इनवेरिएंट से क्या मुराद है, इसका हमें ऑर्डर देखना है, इस ग्राफ का क्या है।
इसका साइज क्या है, कितने एजेस आ रहे हैं, इसमें वर्टिसेस की डिग्रीज क्या है, दो वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, इसकी एसेंट्रिसिटी क्या है वर्टिसेस की। ठीक है, जो हमने 5 अभी इन्वेरिएंट्स फाइंड आउट किए हैं, डेफिनेशन पढ़ी, वो हमने कैलकुलेट करने हैं, फिर हम कुछ आगे बात करेंगे। चलें आगे चलते हैं। सो जो टोपोलॉजिकल इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कब शुरू हुआ था? 1947, जब हम आजाद हुए थे। ऐसी बात है, 1947 में आजाद हुए थे ना हम, तो तब से ये टोपोलॉजिकल इंडेक्स का काम शुरू है। जो फर्स्ट पेपर था ना, वो एच विनर ने जो है ना, इसका फर्स्ट पेपर पब्लिश किया था विनर इंडेक्स। टोपोलॉजिकल इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट आजकल इस पर बहुत काम हो रहा है। कब शुरू हुआ ये काम? 1947 में इसने काम शुरू किया था। इसने यानी कि मैथमेटिक्स को, ग्राफ थ्योरी को इन्वॉल्व किया था केमिस्ट्री के अंदर। तो वहां से फिर आगे लोगों ने इसका पेपर पढ़ा, उस पर वर्कआउट करके फिर आगे बहुत सारी नई जो टेक्निक्स आ गई हैं जो यूटिलाइज हो रही है। लेकिन जो बेसिक, जब मेन आइडिया था, वो कहाँ शुरू हुआ था? 1947 बाय विनर। इसने विनर इंडेक्स कैलकुलेट किया था। मैंने कहा था जो इंडेक्स होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होगा जिसमें हम जो ग्राफ इन्वेरिएंट हमने कैलकुलेट किए हैं वो पुट किएंगे। तो जो विनर इंडेक्स का फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या है? सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डी ऑफ आर एस का मतलब क्या है? आर वर्टेक्स और एस वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, उनको हमने क्या करना है? सम करना है। तमाम वर्टिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको हम सम करेंगे तो हमारे पास विनर इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो दो आज के जो टॉपिक है उसमें दो तरह के हम इंडिसेस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस बेस पे डिस्कशन करेंगे और डिग्री बेस पे डिस्कशन करेंगे। सो पहले जरा डिस्टेंस बेस, चूंकि ये जो पहला पेपर है ना, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में डॉक्टर इमरान साहब बैठे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको जहां से उसका बेस है ना, वो पता होनी चाहिए। बेस पता होगी तो फिर आपकी चीजें आगे आसानी से मूव कर जाती हैं। तो तो अभी पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्टेंस बेस इंडिसेस पे करेंगे। और बल्कि हमने क्या डिस्कशन करनी है, ये जो विनर डेक्स का जो पेपर है ना, इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले कि जो टोपोलॉजिकल इंडिसेस कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ यूटिलाइज होते हैं। एंड देन वी विल मूव इन ओवर वर्किंग। ओके, ये हमारे पास ग्राफ है, इस पे हमने विनर इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो विनर इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लिखा हुआ हमने? डिस्टेंस का सम करना। हमने एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के डिस्टेंस कैलकुलेट करके उन सबको हमने क्या करना है? सम करना। तो हमारे पास विनर इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे कि जो विनर इंडेक्स कैलकुलेट किया है, ये जस्ट एक फार्मूला या एक कैलकुलेशन या इन्वेरिएंट का सम नहीं है। इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है? अभी हम बात करेंगे। हमने ग्राफ थ्योरी को, ये जो आज की जो टॉक है या जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, मैंने बताया ग्राफ थ्योरी की बहुत सारी एप्लीकेशन है नेटवर्किंग के अंदर। वो अगर दोबारा मौका मिला तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम इसको जरा फोकस कर रहे हैं केमिस्ट्री, मैथमेटिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ओके। सो इसमें देखिए, अगर हमने सारे डिस्टेंस 1 से 2 के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 1 वर्टेक्स से 2 के दरमियान 1, और 1 से 3 के दरमियान 1 4। इस तरह 1 5 में आप देखें तो डिस्टेंसेस की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। आप वर्कआउट करेंगे तो ये सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट हो गए। तो इनको सम करें तो हमारे पास विन इंडेक्स क्या आ जाएगा? इसका 18 आ जाएगा। उसका मतलब है, जब भी आपने किसी भी इंडेक्स पे काम करना है, तो उसके इनवेरिएंट्स आपके पास होने चाहिए। इनवेरिएंट से क्या मुराद है? उसका ऑर्डर, उसका साइज, उसके वर्टिसेस की डिग्री, उसके डिस्टेंसेस, एसेंट्रिसिटीज। फिर आप टोपोलॉजिकल डिस्टेंस पे काम का सोच सकते हैं, अगर आप ये चीजें वर्कआउट कर लेंगे तो। ठीक है, तो ये इसका विन इंडेक्स समझ आगे भी कैसे कैलकुलेट हुआ है। ओके, सो इस विन इंडेक्स जो 1947 में जो इसने वर्किंग आउट की थी, इसने अल्केन्स को पिक किया था, मॉलिक्यूलर ग्राफ लिए थे अल्केन्स के। अभी हमने अल्केन्स की बात की। अल्केन की खूबसूरती ये है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा। अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स की बात करें तो डबल बॉन्ड होता है। अल्काइंस की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड होता है उनके अंदर। तो मल्टीग्राफ में चीजें चली जाएंगी। तो हमने इसको पिक किया क्योंकि इसने अल्केन्स पे काम किया था जिसमें सिंगल बॉन्ड बॉन्ड आता था। तो इस पेपर को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एलैबोरेट करना चाह रहा हूँ आपके, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम टोपोलॉजिकल इंडिसेस कैलकुलेट करते हैं तो उनकी कहाँ पे एप्लीकेशन होने जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद इसने जो आइडिया यूज किया था क्यू एस पी आर एनालिसिस एंड क्यू एस सी आर एनालिसिस को भी इसने यूटिलाइज किया था इसके बाद कुछ लोगों ने। लेकिन आइडिया इसका जो विन इंडेक्स का था उसी को यूटिलाइज किया गया था। ठीक है, तो ये भी एनालिसिस अभी थोड़ी देर के बाद कुछ ग्राफ में शो करूंगा, उसके अंदर हम क्यू एस आर मॉडल्स की बात करेंगे। ये कुछ, तो ये अभी जो वर्किंग, ये जो डिस्कशन चल रही है, विनर इंडेक्स का पेपर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ये सारा काम इसने एक पेपर, ये अमेरिकन मैथमेटिकल केमिस्ट्री में ये पेपर पब्लिश हुआ है। ये 1947 बहुत हाई लेवल का जर्नल, इसमें ये वर्किंग इसने पब्लिश की थी। तो ये उसी का पेपर एक्सप्लोर हो रहा है आपके सामने। देखिए इसने कैसे उस दौर में इसने क्या आइडिया लगाया कि ग्राफ थ्योरी को इम्प्लाई कर दिया केमिस्ट्री के अंदर। तो उसने कुछ अल्केन्स यहाँ से पिक की, ये वाली अल्केन्स आपको नजर आ रही है। ठीक है, डिफरेंट काफी सारी अल्केन्स इसने पिक की और इसने इन अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट पे काम किया है।
इसने मैथमेटिक्स को यूज करते हुए प्रेडिक्ट किया कि इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। अभी हम अभी थोड़ी देर में करते हैं इसको, इसके बाद मैं इसको जरा कंक्लूड करूंगा इस पेपर को। अभी हम इस पेपर की सो इसने ये सारे मॉलिक्यूल कौन से पिक किए हुए हैं जो अल्केन्स की बेस पे बन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पेंटीन का ग्राफ शो किया था C5H10, तो वो भी अल्केन्स के अंदर ही आता है, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो वो भी इन्हीं के अंदर एक ग्राफ था, यहाँ से हमने उसको पिक किया है। तो अल्केन्स का इसने क्या किया, जो आपको अभी 12-14 ग्राफ नजर आ रहे थे उन सब का इसने विन इंडेक्स कैलकुलेट किया है। विन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि हर दो वर्टिस के डिस्टेंस लेके आप लोगों को सम करना है। तो देखा WI का मतलब क्या है, इथेन का विन इंडेक्स क्या नजर आ रहा है आपको 1, प्रोपेन का विन इंडेक्स क्या नजर आ रहा है आपको 4। तो इन ग्राफ को लेके आप इनका विन इंडेक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी वाला? ये जो RS है ना, ये H को शो कर रहा है। R और R से मुराद एक वर्टेक्स है, S से मुराद दूसरा वर्टेक्स है। तो H जो बनेगा वो दो वर्टिसेस के होगा ना, उन वर्टिसेस के नाम डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना। नहीं, आप H की फॉर्म में लिखेंगे जब भी यही रहेगा। RS हमारे पास ऐसे दो वर्टेक्स, अगर आप उसको कंबाइन लिखते हैं तो H की फॉर्म में, अगर आप कॉमा लगाएंगे तो वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक। हाँ, कॉमा होगा, जब कॉमा करेंगे तो वर्टिसेस आ जाएगा। अगर आप किसी पे आप नोटेशन नहीं कर, आप इसकी तरह कॉमा रखेंगे तो ये एच होगा, कॉमा रखेंगे तो वर्ड V ऑफ G हो जाएगा। अगर आप RS को ज्वाइन रखें तो एच होगा जस्ट। नहीं, जनरल देखना ना हमने इसको, तो वर्टिस V ऑफ G रख ले, कोई इशू नहीं है, वो मैटर नहीं करता, जस्ट हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके। तो ये जो पहला कॉलम है, इसमें आपने जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ग्राफ्स हैं इनके वेरिएंट इंडेक्सेस कैलकुलेट हुए पड़े हैं। और जो सेकंड आपको कॉलम नजर आ रहा है, इसमें इन मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको। ये बॉइलिंग पॉइंट हमने नहीं कैलकुलेट किया, ये केमिस्ट्री वालों ने लेबोरेटरी के अंदर कैलकुलेट किया। जो सेकंड कॉलम है, ये हमने डाटा वहां से उठाया है, हमने नहीं उठाया, ये इसी ने वर्किंग की हुई है। ये जो विन इंडेक्स है, इसने क्या किया, जो इन मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट था, जो लेबोरेटरी में कैलकुलेट था, वो ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल था, इन्होंने वो लिख लिया कॉलम। जो फर्स्ट वाला कॉलम है, ये इसने कैलकुलेट किया है विन इंडेक्स। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के विन इंडेक्सेस कैलकुलेट हो गए। ओके, आगे चलते हैं। तो जब भी दो हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में वैल्यूज है, तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो इन दो वैल्यूज को आप एक्सेल के अंदर रखें, प्लॉट करें ग्राफ, आपको ये ग्राफ नजर आएगा इस तरह से। ये एक्सेल पे इजीली ग्राफ बना सकते हैं, दो टेबल आपको नजर आ रहे हो तो एक्सेल पे आप इजीली ग्राफ बना सकते हैं। तो एक साइड पे विन इंडेक्स नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे उसके बॉइलिंग पॉइंट नजर आ रहे हैं। ये जो भी मैंने प्रीवियस दो टेबल नजर आए, उनकी मदद से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कोई भी ग्राफ। तो ये एक जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, जब भी आप एक्सेल में कोई भी ग्राफ ऐड करेंगे तो आपको उसकी क्रॉसपोंडिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वेशन भी जनरेट हो जाती है। अगर आपने वर्किंग की हुई तो मैटलैब पे भी कर सकते हैं, दो आप टेबल देखें, उससे आपका उसका ग्राफ जनरेट करें तो आपको उसका ग्राफ भी नजर आएगा, उसकी पॉसिबल इक्वेशन भी नजर आएगी, कोई स्ट्रेट लाइन है, पावर इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, कौन सी ग्रोथ हो रही है। सो अगर इस इक्वेशन, इसका ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है इसमें, तो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास पावर इक्वेशन बनती है। ये बी से मुराद बॉइलिंग पॉइंट है, अल्फा से मुराद इसका विन इंडेक्स है, अल्फा एंड बीटा आर द सम कांस्टेंट वैल्यूज। पावर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, हम उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस पेपर में इसने वर्कआउट किया, इसका बोथ साइड पे लॉग लिया हुआ है, इन कुछ वैल्यूज को नोटेशन यूज किए हैं उसने। लॉग ऑफ बी को उसने वाई से डिनोट कर दिया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आवाज आ रही बच्चों आपको? अभी नहीं किए, अभी नहीं किए। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट टेबल बना हुआ है, इसमें विनर का क्या काम है, विनर ने सिर्फ इसके इंडेक्सेस कैलकुलेट किए हुए हैं। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये ऑलरेडी लिटरेचर में अवेलेबल थे, इस मॉलिक्यूल का ये बॉइलिंग पॉइंट है, उसने इसको कॉलम में ऐड कर दिया। अभी बाद में, वो तो आप बाद में आएगा। इसने क्या काम किया था, इसने जस्ट विनर इंडेक्सेस कैलकुलेट किया, ये बॉइलिंग पॉइंट लिटरेचर में अवेलेबल थे, वो उसने पुट कर दिए। इनका उसने ग्राफ जनरेट किया। ग्राफ मुख्तलिफ वे से आप मैटलैब से, एक्सेल से, कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। दो डाटा टेबल आपके पास हो इजिली, तो ये ग्राफ जनरेट होगा। अब हमने देखना है ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है, पावर इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, पैराबोलिक है, व्हाटएवर। इस ग्राफ को देखो तो हमारे पास एक पावर इक्वेशन बनती है। ये पावर इक्वेशन ग्राफ है, जनरेट हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है दूसरे लफ्जों में ये। तो इसका रिलेशन बना बीटा इज बी से मुराद यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है, डब्ल्यू से मुराद यहाँ पे वेरिएंट इंडेक्स है, अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट वैल्यूज। तो इसको इसने वर्कआउट किया, सॉल्व आउट किया इस पेपर के अंदर। तो लॉग ऑफ बी को उसने वाई से डिनोट किया, लॉग ऑफ अल्फा को ए से डिनोट किया, एंड सो तो ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करें, हमारे पास इक्वेशन बन रही है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये कौन सी इक्वेशन है?
लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद इस पे सम अप्लाई किया, इसने ये कुछ एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसको वर्कआउट का दो वहाँ पर इक्वेशन नजर आ रही है आपको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मामला ये था कि हम यहाँ पे मतलब वर्कआउट इसमें ये करना था, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ताकि हमें एग्जैक्ट रिलेशन नजर आ जाए कि बॉइलिंग पॉइंट और विनियर इंडेक्स में क्या रिलेशन बनता है। अगर आप विनियर इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसका आप बॉइलिंग पॉइंट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जब इन वैल्यूज को आप इस टेबल की मदद से सॉल्व आउट करें तो इसमें ए बी की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी 2.25 एंड बी इज इक्वल टू 0.175। तो ये ए बी की वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में हमने पुट कर दी, y इज इक्वल टू 0.177 प्लस 2.25। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन रही है। इस लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास ये लाइन जनरेट होगी हमेशा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है ना, तो देखिए स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, इस इन वैल्यूज को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें इसने मेथड बताया कि वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है आपने। ये जस्ट आपका दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब आप इस टेबल की मदद से इन इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये इस पेपर में आप डिटेल में देख सकते हैं इसको। सो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बनेगा वो बनेगा 181 W पावर 0.1775, वो जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन निकाली थी। अब यहाँ पे देखना है कि जो विनियर इंडेक्स है इससे बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन बन रहा है। अभी आप फर्स्ट टेबल को अगर गौर से देखें तो उसमें इथेन का विनियर इंडेक्स 1 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या नजर आ रहा है हमें 184। ये जो इक्वेशन जनरेट हुई है वर्कआउट करने के बाद, ओके, तो विनियर इंडेक्स W की वैल्यू इसमें 1 पुट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 181। और इसका एक्चुअल एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट कितना था 184। तो इसका मतलब ये हमारे पास उसके अप्रोक्सीमेट नियर वैल्यू आ रही है 181। तो एक विनियर इंडेक्स की मदद से हम कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आगे जाके इसके अब जो लिटरेचर में काम हो रहा है ना, अब एग्जैक्ट बाउंड निकाल रहे हैं हम लोग जो काम कर रहे हैं। ये तो 181 एग्जैक्ट तो नहीं आया, लेकिन हमें पता चल गया 181 और 184 में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में। थोड़ी सी और हीट अप करेंगे तो वो बॉयल हो जाएगा मॉलिक्यूल जो भी है। 184 डिग्री सेल्सियस 181 से 184 करें तो बॉयल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और ज़ाहिर 1947 में इतने ही इक्विपमेंट हुआ करते थे, इतनी ही वर्किंग थी जो उसने कर ली, लेकिन अब हालात और है। अब आपको एग्जैक्ट बाउंड मिल जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान होगा। शायद वो जो एरर है वो पॉइंट्स के अंदर नजर आएगा आपको। अब सॉफ्टवेयर और आ गए हैं, कैलकुलेशंस और हो गई हैं, बहुत ऐसी चीजें डेवलप हो गई हैं। तो यहाँ से इस डिस्कशन से हमें क्या पता चल रहा है, देखें इथेन का जो हमने बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया, जो विनियर इंडेक्स ने पेपर में किया था, वो कितना आ रहा है 181। और उसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट क्या नजर आ रहा है आपको 184। का मतलब क्या होगा, विनियर इंडेक्स की मदद से हम कोई भी मॉलिक्यूल्स है जो जिसमें सिंपल ग्राफ जनरेट होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, तो विनियर इंडेक्स की मदद से हम सिंपल ग्राफ, मॉलिक्यूलर ग्राफ जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, एक तो एक लेबोरेटरी में माशाल्लाह मैं देख रहा था, लैब बहुत अच्छी है रिफा के अंदर, डॉक्टर कमरान साहब मुझे दिखा रहे थे। लेकिन अगर लैब में बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे ना तो आपको हीटर के पास खड़ा होना होगा और कम से कम 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। या आप केमिस्ट्री वाले से किसी से पूछेंगे यार मुझे इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट तो बता दो, वो आधा घंटे के बाद बताएगा जी मैंने बॉयल किया जी 200 सेल्सियस पे जो है ना वो बॉयल हो गया है। सर आपने आधा घंटा लगाया, मैं अभी देखें 2 मिनट में इस मॉलिक्यूल का ग्राफ बनाता हूँ, ये मैं पावर इक्वेशन बनाता हूँ, ये देखें इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। तो कुछ फायदा होता नहीं होता। एक बंदा आधे घंटे में काम करके ला रहा है, आप उस काम को अगर आपको समझ आ रही है तो आप उसको 5 मिनट में कर लेते हैं, और बगैर कुछ एनर्जी जाया किए हुए। ना आपने हीटर ऑन करना है, ना आपने वो क्या ग्लास वगैरह होते हैं, ना मॉलिक्यूल की जरूरत है, वो मॉलिक्यूल परचेज करना पड़ेगा आपको मार्केट में, फिर आप उसको बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। तो जो मैथमेटिकल केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, दिस इज वेरी हेल्पफुल टू द केमिस्ट। इस पेपर से हमें ये पता चला कि अगर हम मैथमेटिकली चीजों को वर्कआउट करें तो केमिस्ट्री वाले लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। हमारे तो है ही ऐसा, हमने तो पेपर वर्क काम करना है ना, हमने तो देखा अभी तक हमने कोई लेबोरेटरी का काम नहीं किया। सारा पेपर वर्क हम पावर इक्वेशंस को यूज करें, दो डाटा टेबल है उनको ग्राफ जनरेट करें, ये वाला काम तो मैथमेटिशियंस का है ना। इक्वेशंस का डाटा है, आपने उसको ग्राफ ड्रा करना, उसकी इक्वेशन जनरेट करनी है, एबीसी की वैल्यू, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये सारा मैथमेटिकल वर्क है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि जो विनियर इंडेक्स होता है हमारे पास, जो सिंपल मॉलिक्यूलर ग्राफ्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है। इसका मतलब आप टोपोलॉजी कंडीशन पे जब काम करेंगे तो जो और भी कुछ प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी देर के बाद आएंगी, आप मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं,
मॉलिक्यूल की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसकी एंट्रोपी निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल का विदाउट गोइंग टू लेबोरेटरी। और अभी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन आप उसका बाउंड जरूर दे सकते हैं। अब देखें इसमें हमारे पास जो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 181 है, लेकिन इसका एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट 184 है। एक ही बात कर रहा हूँ मैं। अभी जो वर्किंग हो रही है आप इसका एग्जैक्ट बाउंड बता सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 201 से लेकर 20001 के दरमियान होगा। तो एरर जो है बिल्कुल माइनर हो गया है। जनरल आप रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं लोग, तो उसमें बाउंड्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें एग्जैक्ट आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इसमें तो देखो 3 यूनिट का डिफरेंस नजर आ रहा है। चलो ओके, सो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया था आपको कि टोपोलॉजिकल इंडिसेस जो हम कैलकुलेट करते हैं दे आर टू मच यूजफुल फॉर द केमिस्ट। आप उनको उसका बाउंड बता दें, एग्जैक्ट वैल्यू ना बताएं। आप बता दीजिए ये आपके पास मॉलिक्यूल है, आप पेपर वर्क करके बता दीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ना 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200.0009 होगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है जी? 0.009 का डिफरेंस है ना। वो जब वर्कआउट करेगा उसके दरमियानी वैल्यू आएगी उसकी, तो उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जो विनर इंडेक्स का पेपर अभी हमने डिस्कस किया है, इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है आपके ख्याल में? कि जब हम टोपोलॉजिकल इंडिसेस का काम करते हैं, कि जो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी वैल्यूज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग इन द लेबोरेटरी टू द केमिस्ट। लेकिन इसके लिए बैकग्राउंड आपको चाहिए होगा, ग्राफ थ्योरी का बैकग्राउंड चाहिए आपको, ग्राफ्स का पता होना चाहिए, वर्टिसिस, डिग्री, एसेंट्रिसिटी, ये फाइनाइट ग्राफ के आप कंप्यूट कर सकते हो, फिर आप वर्कआउट कर सकते हैं। जो भी मॉलिक्यूल उसका ग्राफ जनरेट करें देन उसको वर्कआउट कर सकते हैं। जी जी सर। जी जी एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सो सर अब ये तो कि ये इसने जो डाटा इस पेपर में वर्कआउट किया था, ये 1947 में इसने सारा काम मैनुअली किया था। अब तो हमारे पास मैटलैब पे भी काम कर रहे हैं हम, मैपल पे भी काम कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट जो है ना उसका डायमेंशन बताते हैं ग्राफ की इतनी है, एम की फॉर्म में। ये तो बात करा ना एक एक मॉलिक्यूल की, इसने जो वर्किंग की है ना वो एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया था इसने। विन इंडेक्स ने जो काम किया था एक एक मॉलिक्यूल लिया था इसने अल्केन्स का, पेंटेन, ब्यूटेन। अभी जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो हम जनरल वर्किंग कर रहे हैं। जनरल से मुराद क्या है कि आप उसको देखें, आपने मेडिसिन देखी होगी, आपने कोई भी सिरप आप चेक करें ना, सिरप उस पर क्वांटिटी लिखी होती है कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड जो है ना NaCl वो 25 ग्राम है, पोटाशियम क्लोराइड इसके अंदर 30 ग्राम है, लिखा होता। 4 इंग्रेडिएंट्स अगर एक मेडिसिन बनी हुई ना उसके ऊपर उनकी क्वांटिटी लिखी होती है। एक गौर किया कभी आपने? सिरप की बोतल आप चेक करें उसके ऊपर क्वांटिटी लिखी होगी, इस सिरप के अंदर ये वाली चीज इतनी ग्राम डली हुई है, ये वाली चीज इतनी ग्राम है, ये वाली इतनी ग्राम है, इतनी। एक मॉलिक्यूल से तो नहीं ना बनता। मे बी उसमें सोडियम क्लोराइड का 15 मॉलिक्यूल है, बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम जो वर्किंग करते हैं हम उसको MN की फॉर्म में ले जाएंगे। MN से मुराद है आप उसके जब MN की वैल्यू आउटपुट करेंगे नजर आएगा आप इसके 15 मिलीग्राम आपने वैल्यू, 15 मिलीग्राम ये आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किया उसके अंदर। तो उस सूरत में इसका बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे? ज़ाहिर एक मॉलिक्यूल होगा, जब वो ज्यादा मॉलिक्यूल होगा ज़ाहिर तो ज्यादा हीट अप चाहिए होगी, फिर जाके वो बॉयल होगा ना। तो अभी हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो ज्यादा जनरल होगी एज कम्पेयर टू 1947। ठीक हो गया सर, इट्स ओके। चलिए आगे चलते हैं। सो इस तरह से जैसे विन इंडेक्स से काम किया, उसके बाद फिर लोगों ने इस पर वर्कआउट किया, इसको सोचा इस तरह से, तो डिफरेंट और भी इंडिसेस कैलकुलेट किए। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं कुछ डिग्री बेस्ड इंडिसेस की। अभी जो ज्यादा काम हो रहा है वो डिग्री बेस्ड इंडिसेस पे हो रहा है, ठीक है। तो डिग्री बेस्ड इंडिसेस में हमारे पास फर्स्ट ज़ेग्रेब इंडेक्स है और सेकंड ज़ेग्रेब इंडेक्स है। तो ये इसके आपको फार्मूला नजर आ रहे हैं आपको। अब इसमें देखें जो फर्स्ट, जैसे भी हमने बात की, जो विन इंडेक्स होता है ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम हर बंदे को, मैथमेटिशियन को समझ आ जाती है, क्योंकि एफएससी में बॉइलिंग पॉइंट का नाम तो सुना ही होता है हमने। जब कुछ और प्रॉपर्टीज भी आएंगी शायद उनका हमने नाम सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो वो आप डिटेल में उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड ज़ेग्रेब इंडेक्स है, पेपर 1 और 3 को अगर आप पढ़ें, तो जो फर्स्ट और सेकंड ज़ेग्रेब इंडेक्स है ये यूज होते हैं टू प्रिडिक्ट पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में मूव करते हैं ना, उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर उसने लोअर शेल से अपर शेल में जाना तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, अगर उसने अपर शेल से लोअर शेल में आना तो उसको एनर्जी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी की कैलकुलेशन है ना उसमें हेल्प आउट करता है ये फर्स्ट और सेकंड ज़ेग्रेब इंडेक्स। जैसे अभी हमने विन इंडेक्स की बात की ना, विन इंडेक्स को आपने, मैंने देखिए पेपर एक्सप्लोर करके आपके सामने रखा, ये देखिए अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट को प्रेडिक्ट कर रहा है एग्जैक्ट राउंड अबाउट 3 का यूनिट का डिफरेंस है, और कुछ अल्केन्स जिनको तकरीबन 1 पॉइंट्स में एरर है जिनका।
तो इस तरह जो फर्स्ट और सेकंड जगरब इंडेक्स है ये बच्चों किस लिए यूज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी आप अलग से वर्कआउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात, लेकिन मैं थोड़ा रफली बता रहा हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होती है, अभी जैसे हमने देखा ना कार्बन और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना था, उसमें क्या होता, जो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन के सेकंड शेल में मूव कर गए, याद है जो भी मैंने फिगर शो की थी। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में मूव करते हैं ना, उनको एनर्जी चाहिए होती है, तो वो कितनी एनर्जी होगी उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम कौन से इंडिसेस यूज करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जगरब। इसकी डिटेल अगर आपने देखी कि कौन से मॉलिक्यूल्स का इसने पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैलकुलेट की है, पेपर है 1 और 3 पेपर को आप वर्कआउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन्हें कौन से मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैलकुलेट की है। एक पेपर अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, नहीं है तो आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ओके, इसमें फिर हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया स्कोपस डेटाबेस से। अब जाहिर जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं ना, डिफरेंट डेटाबेस के अंदर रखे होते हैं। कुछ हाई डेटाबेस हैं जिनके अंदर जो बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर होता है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह कैटेगरीज में पाकिस्तान में कुछ और सिस्टम चल रहा है। तो ये जो डाटा लिया गया है स्कोपस डेटाबेस से डाटा लिया गया है। तो जो फर्स्ट और सेकंड अगर इंडेक्स को देखते हैं कि कितनी डिफरेंट डायरेक्शंस में फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स पे काम हो रहा है, और इसके जो फर्स्ट एंड सेकंड अगर इंडेक्स एग्जैक्ट दो जो इंडिसेस पे काम हुआ, तकरीबन 1200 के करीब रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं इस पे, मोर देन 1000 आर्टिकल्स। और देखिए जो फर्स्ट जगरब इंडेक्स है डिफरेंट इंडिसेस के साथ कोलैबोरेट हुआ पड़ा है। इसमें ग्राफिकल मेथड्स में वर्किंग होती है, एक्सट्रीमल ग्राफ पे वर्किंग होती है, उनके इंडिसेस निकाले हुए, डोमिनेशन नंबर के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये डाटा है, ये स्कोपस डेटाबेस से लेके ये ग्राफ आपको शो किया गया है कि जगरब जो इंडिसेस हैं दे आर वेरी अंडर वर्क इन दिस एरिया इन दिस करंट टाइम। और जो फर्स्ट एंड सेकंड जगरब इंडेक्स तो बहुत सारे दुनिया में जो ऑथर्स हैं, बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं, कुछ केमिस्ट भी और कुछ मैथमेटिशियन भी ज्वाइंट वर्क कर रहे हैं। ये उन मैथमेटिशियन भी आपको नाम नजर आ रहे हैं जो जिन्होंने फर्स्ट जगरब इंडेक्स पे और सेकंड जगरब इंडेक्स पे काम किया हुआ है। तो अगर आपने इस पे काम करना तो आप किसी भी ऑथर को सर्च आउट करें, उसके सारे पेपर उसका होम पेज पे जाएं, जाहिर वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर होगा, तो जस्ट आप उसका नाम सर्च आउट करेंगे तो उसके आपको सामने पेपर मिल जाएंगे, उसमें आपको फर्स्ट जगरब इंडेक्स के पेपर पढ़ने को मिल जाएंगे अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड जगरब इंडेक्स पे काम करना है। और ये जो ग्राफ बना हुआ है स्कोपस डेटाबेस हमने डाटा लेके फिर एक हमने सॉफ्टवेयर यूज किया था वीओएस व्यूअर, उसकी मदद से मैंने ग्राफ जनरेट किया था, आपको थोड़ा सा हमें पता चले कि इस इंडेक्स पे कितना काम हो रहा है, कौन लोग काम कर रहे हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स सारा वो रैंडिक इंडेक्स है और जनरल रैंडिक इंडेक्स के फॉर्म में। ये जो रैंडिक इंडेक्सेस हैं ये हमारे पास किससे यूज होते हैं, टू प्रिडिक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे हमने फर्स्ट स्टार्ट में बात की ना, जैसे विन इंडेक्स है वो हमारे बॉइलिंग पॉइंट को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है। इससे पहले हमने भी थोड़ी देर पहले फर्स्ट जगरब इंडेक्स की बात की, तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को प्रिडिक्ट करने के लिए वर्कआउट होते हैं। इस तरह जो रैंडिक इंडेक्सेस हैं ये हमारे पास किस लिए कैलकुलेट होते हैं, जो वेपर प्रेशर होता है ना मॉलिक्यूल का, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो ये आप इसका पेपर देखें, ये जो फर्स्ट 3 वाला पेपर है, इस 3 और 4 वाला पेपर, इसको अगर आप वर्कआउट करें, इसको एक्सप्लोर करें तो आपको आइडिया होगा किन मॉलिक्यूल का इन्होंने वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया यूजिंग रैंडिक इंडेक्स। अभी आ रहे हैं उस पर, वो तो एट द एंड मैं चाह रहा हूँ मुझे बोर्ड मार्कर कुछ मिले तो मैं अभी उसको जरा करें। अभी अभी आ रहे हैं, अभी जस्ट मैं थोड़ा सा ना कुछ इंडिसेस के बारे में बता दूं, उसके बाद हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे मिलकर। ठीक, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो वर्किंग है ये सिंपल जस्ट 1-2 पेपर नहीं, इसे बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। ये जो फील्ड है जिस पर हम काम कर रहे हैं इसमें हम ही नहीं काम कर रहे, पूरी दुनिया में देखते हैं, आपको भी ग्राफ नजर आ रहे होंगे। देखें रैंडिक इंडिसेस के तक जो एग्जैक्ट रैंडिक इंडिसेस के पेपर है, जिस पेपर में जिस रैंडिक इंडेक्स एक मॉलिक्यूल लिया गया, उसके रैंडिक इंडेक्स कैलकुलेट करके उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है, वो तकरीबन 1400 के करीब पब्लिश रिसर्च पेपर्स हैं जो रैंडिक इंडिसेस पे स्कोपस डेटाबेस के अंदर है। मैंने बताया डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर है। जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं वो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के या अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के अंदर वहां पे आपको मिलेंगे। तो लो इम्पैक्ट फैक्टर के हैं वो उससे लो जो डाटाबेस है। ठीक है, हमारा पाकिस्तान का एक अपना ही डाटाबेस है एचईसी, ठीक है, इसने WXYZ के अंदर पेपर को डाल दिया है। ठीक है, तो अभी हम उसको बात नहीं कर रहे, वो एक और दुनिया है, पाकिस्तान की दुनिया और है। हम क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करना, जो आपका पेपर जो आप काम करेंगे वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जाएगा बल्कि कहाँ पे जाएगा वो, तो हमने इंटरनेशनल लेवल से चीजें को कम्पीट करना है, ना कि यहाँ पे WX के चक्कर में पड़े रहना है। ठीक है, तो देखें रैंडिक इंडेक्स पे काफी डायरेक्शन में आपको काम नजर आ रहा है। ठीक है, और रैंडिक इंडेक्स पे ये वो ऑथर्स का मैंने ग्राफ बनाया है उस सॉफ्टवेयर की मदद से, डाटा लेके स्कोपस डेटाबेस से। ये स्कोपस डेटाबेस से इतना आसान नहीं है सारी वर्किंग जो आपको सामने नजर आ रही है आपको,
ये तकरीबन 1400 के करीब रिसर्च पेपर वर्कआउट हुए हैं। उनका डाटा कि उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उसको सॉफ्टवेयर के अंदर डाला हमने, बीओएस के अंदर, एंड देन उस पर डिफरेंट ऑप्शन लगा के हमने ये ग्राफ जनरेट किया है। तो इससे हमें सिर्फ ये मोटिवेशन मिलती है कि इस टॉपिक पे कितने लोग काम कर रहे हैं। डिफरेंट ऑथर्स हैं जो इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी भी हैं और बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रैंडम इंडिसेस पे काम कर रहे हैं। आपको जिस इंडेक्स की समझ आ जाए आप उस पर काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही उसमें आपने सारे, आपने ऑलराउंडर नहीं बनना, जो भी चीज आपको समझ आती है आपने उस डायरेक्शन में चल पड़ना। आपको वेन इंडेक्स समझ आता है, वेन इंडेक्स पे काम करे, रैंडम इंडेक्स समझ आता है, फर्स्ट अगर इंडेक्स समझ आता है, आगे कुछ और जिस इंडेक्स की आपको समझ आती है आप उस पर वर्क मॉलिक्यूल्स पिक करें और आप उसे वर्कआउट कर सकते हैं। और उस ऑथर्स के पेपर देख लेंगे, इस ऑथर ने इस इंडिसेस पे काम किया तो उसके पेपर डाउनलोड करें, आप पढ़ेंगे तो आपको उस एक्सप्लोर कर लेंगे कि किस तरह उसने वर्किंग की है, किन किन मॉलिक्यूल को उसने डिस्कस किया होगा। तो ये एटॉमिक बॉन्ड कनेक्टिविटी इंडेक्स का एक फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, ये इंडेक्स किस लिए यूज होता है जी? तो प्रिडिक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ऐसे मॉलिक्यूल की हीट ऑफ फॉर्मेशन भी होती है। तो ये जो एबीसी इंडेक्स है ना, ये इस प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है। पेपर ये 6 वाला पेपर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसने अल्केन्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन को प्रिडिक्ट किया है इस इंडेक्स की मदद से। नीचे देखें जरा, ये पेपर जो लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अल्केन वाया एबीसी इंडेक्स, तो इसके अंदर इसने इन चीजों को वर्कआउट किया हुआ है। सो ये जो एबीसी इंडेक्स है, इससे हवाले से ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है कि किन किन इंडेक्स से ये रिलेशन रिलेट आउट होता है और इस इंडेक्स पे किन किन ऑथर्स ने काम किया हुआ है। एबीसी इंडेक्स पे देखें पूरी वर्ल्ड में से ये पिक किए गए, ये एक एरिया नहीं है ना, ये पाकिस्तान है ना कोई 2-3 कंट्रीज नहीं है, पूरी वर्ल्ड में से जो स्कूपस डेटाबेस के अंदर ऑथर्स के पेपर थे उनसे ये डाटा, ये ग्राफ जनरेट किया गया। तो देखें इस एबीसी इंडेक्स पे भी कितने लोग दुनिया में काम कर रहे हैं। आप भी काम करेंगे तो फ्यूचर में आपका नाम भी कहीं ना कहीं इस ग्राफ के अंदर आ सकता है। इसका मतलब ये कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं ना, इस इंडेक्स पे दो ऑथर्स ने, 3 ऑथर्स ने ज्वाइंट वर्क किया है ना, कोलैबोरेशन से काम होगा। अब कोलैबोरेशन से काम करेंगे तो ज्यादा जिंदगी आसान रहेगी। जी डॉक्टर साहब, ओके क्लोज कर रहे हैं इसको टाइम। ओके, ये कुछ और इंडेक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनके इस तरह से ग्राफ्स हैं मैंने बनाए हुए हैं, डिफरेंट कंट्री वाइज भी हैं। तो जो इंडिसेस हैं हम डिस्टेंस बेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री बेस भी और एसेंट्रिसिटी बेस भी इंडिसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मुराद वही बात है कि हम डिस्टेंस बेस इंडिसेस निकाल सकते हैं, डिग्री बेस इंडिसेस निकाल सकते हैं, एसेंट्रिसिटी बेस, स्पेक्ट्रम बेस, कुछ और भी आइगन वैल्यू बेस भी इंडिसेस हैं। तो अभी जस्ट हम इनको वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी क्या है कि आप डिफरेंट ऑथर्स के रिसर्च पेपर लें, उनको पढ़ें, उनको अंडरस्टैंड करें, जिस जो भी आपको समझ आता है आप उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी यहाँ पे, मेथोडोलॉजी से मुराद ये है कि जिस ऑथर का आपको काम समझ आ रहा है उसके पेपर डाउनलोड करें, उनको पढ़ें, उनको वर्कआउट करें, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्किंग। ओके, जो मेन आइडिया वो ये है, अभी कुछ दोस्त पूछ रहे थे काम कैसे करना हमने, तो काम के लिए मैंने आपको मेथोडोलॉजी ग्राफ एक बनाया हुआ, कंस्ट्रक्शन ग्राफ, कि आपने एक मॉलिक्यूलर ग्राफ लेना है, उसकी डिग्री पार्टीशन करनी है, उसकी वर्टेक्स पार्टीशन करनी है, उसकी एज पार्टीशन करनी है, एंड देन उसके हमने टोपोलॉजी कैलकुलेट करने हैं, उन टोपोलॉजिकल लिस्ट की मदद से हमने उसके रिजल्ट्स बनाने हैं, न्यूमेरिकल बनाने हैं, देन ग्राफ उसके जनरेट करने हैं, फिर आपने उसका कंक्लूजन बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि मेथड है, मेथोडोलॉजी है इंडिसेस के वर्कआउट की। तो प्रॉब्लम है फिर वही बात में करूंगा कि आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल को पिक करके आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि वो सिंपल ग्राफ उसका बने, तो आसान रहती है जिंदगी। हमारा जो ग्रुप है वो आजकल इन 3 इंडिसेस पे काम कर रहा है, डिग्री बेस भी काम कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस बेस भी काम कर रहे हैं और सेंट्रिसिटी बेस भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें वही मेथोडोलॉजी का आप एज पार्टीशन कर लेंगे, उसके ग्राफ और उसकी कैलकुलेशंस, एंड देन यू हैव डिस्कशन अबाउट दीज रिजल्ट्स। ओके, ये हम बात करें अभी थोड़ी सी, डॉक्टर साहब को 5 मिनट होंगे मेरे पास, 5 मिनट दे दे बस, उसकी ये लास्ट स्लाइड है। ये देखिए, ये जो हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं हमें काम किस तरह करना है, ये आपको पाथ ग्राफ नजर आ रहा है यहाँ पे, कि इस पाथ ग्राफ में अगर हम बात करें तो ये हमने एक्चुअली 2 टेबल हमें चाहिए होते हैं जो राइट साइड पे बने हुए हैं। हमने इसके ऑर्डर निकालना है, इसका साइज निकालना है, इसके वर्टिस की डिग्रीज निकालनी है, इसकी एक्सिस की पार्टीशन कैलकुलेट करनी है, फिर हम वो जो फार्मूला उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आपने जो वर्किंग करनी है वो वेरीफाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से वर्टिसेस काउंट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से एजेस काउंट कर लें, वैसे काम नहीं होगा। जो भी आप मैथमेटिक्स की यही खूबसूरती है, इसमें चीजें वेरीफाई होती हैं, एम्बिग्यूटी नहीं है कोई, ठीक है। अभी हम बात करें पाथ ग्राफ की, देखें पाथ ग्राफ जो हमारे पास, तो ये P5 नजर आ रहा हमें। इसमें अगर आप देखें जो एंड वर्टिसेस हैं इनकी डिग्री क्या है हमारे पास,
1 और इनकी डिग्री क्या नजर आ रही है हमें। तो जो पाथ ग्राफ होता है इसका जो ऑर्डर होता है ना वो n होता है। अगर पी एन की बात करें हम, पाथ ग्राफ में ऑर्डर क्या होता है n, और जो इसका साइज होता है वो कितना होता है भाई, n-1। तो अब हमने इस ये P6 की बात करना, अगर मैं P5 है तो अगर हम P6 करें तो फिर क्या होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री है ये। तो हमने जनरल टेबल जनरेट करना है, क्योंकि तो हमने मॉलिक्यूल लेना है ना, वो एक मॉलिक्यूल नहीं लेना, हमने जनरल मॉलिक्यूल लेना है कि हम कितने भी फॉर्म के हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाए तो हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें देखें जो V1 है वो कितने नजर आ रहे हैं हमें पूरे ग्राफ के अंदर, 1 डिग्री के जो वर्टिसेस हैं वो कितने नजर आ रहे हैं हमें इसमें। और V2 से मुराद क्या है, वो वर्टिसेस जिनकी डिग्री क्या है 2। यहाँ पे ये वर्टिसेस कितने नजर आ रहे हैं हमें, ये P5 की बात कर रहे हैं ना हम, तो अगर मैं ये लिखूं तो कोई मसला तो नहीं है इसमें। यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं हमें, ये P6 की बात कर रहे हैं हम, ये P7 की बात करें, P7 में अगर आप ये देखें तो ये कितने आ रहे हैं, ये यहाँ पे 3 नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 5 नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने इसको जनरल रिजल्ट की फॉर्म में देना है, तो अगर जनरल रिजल्ट देखें तो ये 2 डिग्री के कितने वर्टिसेस नजर आ रहे हैं हमें, n-2। ओके, तो अगर हम ये टेबल जनरेट कर लें जिसमें हमारे पास क्या हो, यहाँ पे वर्टेक्स की डिग्री हो और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी हो, तो इसमें देखें 2 ही तरह के वर्टिसेस नजर आ रहे हैं इस ग्राफ के अंदर हमें, 1 डिग्री के और 1 डिग्री के कितने नजर आ रहे हैं हमें, और 2 डिग्री के कितने वर्टिसेस नजर आ रहे हैं हमें। इनको आप सम आउट करें, क्या आंसर होगा। तो टोटल ग्राफ के अंदर वर्टिसेस भी कितने हैं, n। जब हमने उसकी पार्टीशन की, उसको हमने एड अप करके देखा, तो इसका मतलब है सारे वर्टिसेस काउंट हो गए। इसका मतलब ये कि जो आपने वर्टेक्स पार्टीशन की है वो आपकी ठीक पार्टीशन हुई है, कोई वर्टेक्स मिस नहीं हुआ। आपने इसको एड अप करना है, अगर इसका आंसर ऑर्डर ऑफ द ग्राफ आएगा, इसका मतलब आपने जो वर्टेक्स पार्टीशन की है ये ठीक पार्टीशन की हुई है। इस तरह से हम एज पार्टीशन भी कर सकते हैं, उसका टेबल बनाएंगे तो जब एजेस को आप ऐड करेंगे तो जो उसका साइज है n-1 आंसर आना चाहिए आपका। इसका मतलब आपकी वर्टेक्स पार्टीशन भी ठीक हो गई होगी और एज पार्टीशन भी ठीक हो गई। ये आपको टेबल नजर आ रहे हैं इसके अंदर। एंड देन वी कैन अप्लाई द टोपोलॉजिकल इंडिसेस फार्मूला एंड देन यू कैन वर्क आउट इन दिस डायरेक्शन। देखिए इसका पाथ ग्राफ को मैंने रैंडिक इंडेक्स कैलकुलेट किया हुआ है। ये जो 2 टेबल थे इनकी मदद से आप उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आप रैंडिक इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो कंक्लूजन इसका ये है टॉक का कि आप डिफरेंट इनवेरिएंट की बेस पे, डिग्री की बेस पे, डिस्टेंस और एसेंट्रिसिटी बेस पे डिफरेंट टोपोलॉजिकल इंडिसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और केमिकल ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं। फ्यूचर में आपको ये कि इनकी मदद से आजकल जो इस पे वर्कआउट हो रहा है, इसमें मॉडलिंग चल रही है, मॉडलिंग के बाद क्यूएसपी और मॉडल्स हम अप्लाई करके वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो बहुत आगे चीजें आ गई हैं। ये जो 1947 तो बहुत पीछे रह गया, उसने बहुत सिंपल वे में वर्किंग की थी। आजकल हम इसको और आगे ले गए, इसको मॉडल्स अप्लाई करके हम एग्जैक्ट पता कर लेते हैं इसका क्या जो प्रॉपर्टीज है वो कहाँ तक मूव कर रही है वैल्यूज डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो इसमें हमने जो भी वर्कआउट किया इसमें हमने शो किए हुए हैं। और ये कुछ अभी रिसेंट 2024 की मेरी पब्लिकेशंस हैं जो हमने इस पे डिफरेंट टॉपिक्स पे वर्कआउट किया हुआ है, ठीक है। ये 2024 की कुछ पब्लिकेशंस हैं, अगर इनमें से अगर किसी कोई पेपर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल करेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये 2024 की नहीं है एक्चुअली, जो वर्किंग है सारी 2023 की है। वो पब्लिश ज़्यादा टाइम होता है उसमें, 6-7 महीने 8 महीने लग जाते हैं। तो ये वर्किंग 2023 की है, लेकिन ये सारे पेपर आप काम करते हैं, उसको सबमिट करवाते हैं, रिवाइज होता है, फिर एक्सेप्ट होता है, फिर पब्लिश होता है, टाइम लग जाता है ना। तो ये एक्चुअली वर्किंग 2023 की है, 2024 में जाके पब्लिश, 2024 का काम अभी चल रहा है, वो अल्लाह के नेक्स्ट ईयर पब्लिश हो जाएगा, उम्मीद है। और ये कुछ और भी पेपर्स हैं जो हमने डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश किए हुए हैं। तो 2024 में 12 पेपर जो है ना, अल्लाह का शुक्र है वो ऑनलाइन आ चुके हैं हमारे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।